Hello students and welcome to the online teaching learning method. Our subject is Industrial Instrumentation IME 22420 and we are on the unit number 5, that is temperature measurement, which carries 1 4 14 marks. Our today's lecture number is 24 and topic presentation on pyrometers and its types. Our institute vision is excellence in technical education to empower youth, and the missions are imparting quality technical education to prepare students with excellent technical skill, to develop competent and employable diploma engineers as a responsible citizen, and strengthening industry institute interaction. Then departmental vision is to develop professional electrical engineers ready to face the challenges in the global environment, and the missions are develop technical strong and professional engineers to meet industry needs, develop ethical values, discipline and teamwork and leadership qualities in the student, and develop student to enhance employability. The program educational outcomes are provide socially responsible, environment friendly solutions to electrical engineering related broad based problems, adapting professional ethics, adapt state of the art electrical engineering broad based technology to work in multidisciplinary work environment, and solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. The program outcomes are basic and discipline specific knowledge, problem analysis, design or development of solution, engineering tools, experimentation and testing, engineering practice for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. The course outcomes are student will be able to maintain different types of temperature transducers, and learning outcomes are student will be able to maintain different types of transducers used for measurement of various parameters. Well, our today's topic is pyrometer and its type. So basically सबसे पहले हमें देखना है कि pyrometers क्या होता है. तो pyrometry is a technique for measuring temperature without physical contact. आप लोगों को इसमें टेम्परेचर मेजर करना है. सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ टेम्परेचर को मेजर करना है. बट यहाँ जो टेम्परेचर पायरोमेट्री जो है, ये पायरोमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. यानी आपको कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय द बॉडी. यहाँ हमें एक हॉट बॉडी रहेगी, एक हॉट सोर्स रहेगा. तो ये जो है यहाँ रिलेशनशिप रहेगा जो कि टेम्परेचर रहेगा हॉट बॉडी का उससे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द हॉट बॉडी. इट इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग अ बॉडी टेम्परेचर बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ये ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. क्योंकि ये जो यहाँ जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो हॉट सोर्स है, वो हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी का टेम्परेचर और वो जो हॉट बॉडी है उसमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों का रिलेशन ही इसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. तो यहाँ बॉडी का टेम्परेचर हमें डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which is going to be emitted from the hot body. And pyro is a Greek word which means fire. There are basically two types of pyrometers. First is optical pyrometer and second one is the radiation pyrometer. So first we are moving towards the optical pyrometer. अब यहाँ जो हमें डायग्राम दिख रहे हैं, अब यहाँ मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ आपको फिजिकल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई चीज़ को हाथ पे हाथ लगा के फिजिकल कांटेक्ट से आपको टेम्परेचर मेजर नहीं करना है. यहाँ नॉर्मली टेम्परेचर मेजर होता है by the relationship between the hot body temperature and the radiation emitted by that hot body temperature. अब यहाँ देखिए डायग्राम में आपको दिया गया है. सबसे पहले आपको आईपीस यानी आपको वहाँ आँख रख कर देखना है. उसके बाद आपको एक फ़िल्टर दिया गया है, फिर एक लैम्प दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो लैम्प है वो लैम्प की ब्राइटनेस से ही आपको पता चलेगा टेम्परेचर क्या है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्क्रीन दिया है जो कि हॉट बॉडी से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. और एक ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया है एंड एक हीटेड सोर्स दिया गया है. अब यहाँ देखिए जो लैम्प है वो कनेक्टेड टू रियोस्टैट बैटरी एंड पीएमएमसी मीटर को. अब यहाँ जो हीटेड सोर्स है, सबसे पहले ये हीटेड सोर्स क्या करेगा, आपके रेडिएशंस को एमिट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी
हॉट बॉडी है, हीटेड सोर्स है, हॉट बॉडी है, तो उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, टेम्परेचर इतना हॉट बॉडी रहेगा, तो यहाँ रिलेशनशिप, यहाँ टेम्परेचर आप कैसे मेजर करोगे, बाय दिस हॉट बॉडी, heated source hot body and the radiations, electromagnetic radiations emitted by that hot body. तो अभी वर्किंग की तरफ ध्यान देंगे हम। ब्राइटनेस टेम्परेचर does depend on the sensitivity of the eye to the differences in the brightness and on the knowledge of the mean effective wavelength of the radiation being viewed. क्या बोला है कि जो ब्राइटनेस रहेगा टेम्परेचर वो काय के ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द आई टू द डिफरेंसेस इन द ब्राइटनेस, क्योंकि जैसे जैसे ब्राइटनेस आपका कम ज़्यादा होते जाएगा वैसे आपकी आँखों का सेंसिटिविटी आपको वो बताएगा। क्योंकि आप देखो, अगर आपका नॉर्मल घर पर अगर लाइट जल रहा है तो आप एक जैसे उसकी तरफ देखो, लेकिन अगर कोई हैलोजन लाइट है तो आप एक जैसे उसकी तरफ नहीं देख सकते हो। नॉर्मल छोटा सा लाइट है, वो टेम्परेचर आप वो जो है उससे सेंसिटिविटी पता चलती है कि वो जो ब्राइटनेस है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, क्योंकि अपनी आँख जो है वो आँख भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है तो अपनी आँख उसको प्रॉपरली देख नहीं पाती है। तो वो टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि उसकी सेंसिटिविटी, ब्राइटनेस से पता चलता है कि सेंसिटिविटी कितनी है। It does not depend on the distance between test body and optical pyrometer. However, we must be sure that radiation observed is that being emitted by the test body rather than reflected radiation. यहाँ जो रेडिएशन हमें दिख रहे हैं, ये रेडिएशन क्या हो रही है, वो टेस्ट बॉडी क्या कर रही है, एमिट कर रही है, बाहर फेंक रही है। तो हमें वही देखना है, ये पायरोमीटर हमें वही दिखाता है कि जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें पता चलता है कि वो बॉडी कितनी हॉट है या उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है। सिंस देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस एंड रेडिएशन इट रिफ्लेक्ट्स, ऑल्सो स्मोक और फ्यूम्स बिटवीन द ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड द टारगेट मस्ट बी अवॉइडेड और मस्ट डस्ट और अदर डिपॉजिट ऑन द लेंसेज, स्क्रीन्स और लैम्प विंडोज़। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सबको पता है सन इज़ नथिंग बट अ फायर बॉल। अब वहाँ आप नहीं देख सकते हो, वाई, सेंसिटिविटी आँखों की उतनी सेंसिटिविटी इतनी रहती है कि आप नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो सन जो आपका हीट या लाइट एमिट कर रहा है, रेडिएशंस जो एमिट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, वो रेडिएशंस इतने ज़्यादा हैं कि वो रेडिएशंस हम नहीं सह पा रहे हैं बहुत आँखों से। तो वो रेडिएशन से हमें पता चलता है कि वो जो सन है उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो यही ऑप्टिकल पायरोमीटर और रेडिएशन पायरोमीटर में है कि विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट आप लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। कैसे? वो जो हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय दैट हॉट बॉडी। जैसे सूरज यानी सन में सन का टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर, वहाँ जाके मेजर नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट के थ्रू। हम कैसे मेजर कर पा रहे हैं? जो वो रेज बाहर फेंक रहा है, वो रेज की अपने साथ सेंसिटिविटी क्या है, आई सेंसिटिविटी उसके साथ, उसके हिसाब से हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिएशन पायरोमीटर। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, एक हॉट बॉडी है, लेंस लगाई है, वहाँ से हॉट बॉडी रेडिएशन एमिट करेगा। अब यहाँ मिरर एज अ रिफ्लेक्टर लगाया है, मिरर एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वहाँ जो रेज गिरेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी सीधा डिटेक्टर को। डिटेक्टर क्या करेगा? वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उससे वो डिटेक्ट करेगा, और वो डिटेक्ट करने के बाद वो टेम्परेचर इंडिकेटर को क्या करेगा? भेज देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडिएशन पायरोमीटर। काफ़ी सिंपल है। द रेडिएशन पायरोमीटर हैज़ एन ऑप्टिकल सिस्टम including a lens, mirror and an adjustable eyepiece. The heat energy emitted from the hot body is passed to the optical lens which collect it and it focused on the detector with the help of mirror and eyepiece arrangement. यही मैंने बताया। अब क्या होगा? जो हीट एनर्जी होगी हॉट बॉडी से एमिट होगी वो कहाँ जाएगी? थ्रू एन ऑप्टिकल लेंस, वो फोकस्ड होगा डिटेक्टर के पास विद द हेल्प ऑफ मिरर। मिरर पे गिरेगी, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा डिटेक्टर। द डिटेक्टर may either be thermistor or a photomultiplier tube. Though the latter is known for the faster detection of fast moving object, the former may be used for small scale applications. Thus the heat energy is converted to its corresponding electrical signals by the detector and is sent to the output temperature display device. अभी डिटेक्टर क्या करेगा?
ये जो हीट एनर्जी रहेगी ये हीट एनर्जी कन्वर्ट करेगा टू द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो कहाँ भेजेगा, टेम्परेचर डिस्प्ले डिवाइस को, तो हमें वहाँ टेम्परेचर पता चलेगा. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पायरोमीटर्स. लाइट वेट एंड पोर्टेबल, इट मे बी बैटरी ऑपरेटेड, hence self contained unit. Good accuracy compared to radiation pyrometers. No direct contact is necessary with object whose temperature is to be measured. The measurement is dependent on the independent of the distance between object and instrument and wide instrument range. And the disadvantages of optical pyrometers are emissivity of an object affects the accuracy of measurement. It may not useful to measure temperature below 700 degrees Celsius, not useful for measuring the temperature of clean gases. Accuracies depend upon the operator adjustment of equal brightness of the filament and object surface and relatively expensive. So today I am summarize this lecture. Today we have learned about pyrometers, what is the pyrometry principle and what are its two types, radiation and optical, and about its advantages, working disadvantages we have learned. So by this the following POs are going to be mapped. So up till that, thank you and keep learning.